آپ سب کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں اور وہ کہانی آپ کو سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ ضرور پسند آئے گی۔ ایک بزرگ عورت کی کہانی ہے جو بہت ہی نیک دل خاتون تھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدیوں سال پرانی کہانی ہے دمشق کی۔ دمشق کی کہانی ہے یہ۔ کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو سالوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، بہت کمزور کر دیا تھا، اور تکلیف نے اس کی روح تک کو نچوڑ دیا تھا۔ آس پاس کے سبھی ڈاکٹروں کو، سبھی حکیموں کو دکھایا تھا، لیکن تمام حکیموں نے کوشش کی مگر سب بے بس ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت دور دراز بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص انڈیا سے پاکستان جا رہا ہو یا کہیں اور باہر سعودی، دبئی جا رہا ہو۔ انڈیا میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری کا واحد ماہر ڈاکٹر صرف امریکہ میں ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے فاصلہ، خرچہ، پیسہ سب کچھ ناممکن ہے۔ یہ سب چیزیں سب کچھ ناممکن میں ہی شمار ہوتی ہیں ایک غریب انسان کے لیے۔ اس طرح اس زمانے میں بھی بغداد جانا ایک خواب ہی تھا، یعنی ایک خواب سے کم نہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر یقین، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں یہی کہتی تھی کہ اللہ میرا نگہبان ہے، وہی حکیم خود چل کر میرے گھر آئے گا اور اس کا سبب اللہ ہی بنائے گا، وہی مالک اور خالق ہے میرا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ممکن کو ناممکن کر سکتا ہے اور ناممکن کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے، اور ایسے اس پیدا کر دیتا ہے اور ایسے نتائج پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس کہانی کی بنیاد ہے یقین، اللہ پر یقین۔ وہ زمانہ ایک ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری تھی، نہ سامان تھا، نہ پیسہ تھا، نہ شہرت تھی۔ راستے طویل اور کٹھن تھے، لیکن اس کا یقین کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم خود اس کے پاس بھیج دے۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کچھ ایسا کرے گا، یا تو حکیم آ جائے گا یا اللہ اس بوڑھی عورت کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی، مجھے اسی حکیم کے پاس علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبب بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا تھا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے بہت دور ہوتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی، مگر کہیں سے کوئی مدد حاصل نہ ہوئی، کسی کا کوئی جواب اچھا نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے بیچ بے بسی کی زندگی گزارتی رہی، اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غریبی میں، غربت میں اور شدید بیماری کا سامنا کرتی ہوئی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب عبادت کی طاقت باقی نہ رہی تھی، نہ کھانا پینے کی ہمت تھی۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو کبھی صرف پانی پر گزارا کرتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ اس کے اندر، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ بالکل طاقت نہیں رہی تھی، کھانا بھی نہیں کھاتی تھی،
कभी कभी सिर्फ पानी पर ही गुजारा कर लेती थी, लेकिन बिल्कुल कमजोरी के बावजूद भी उसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वह हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रहती थी। यकीन के साथ, सब्र के साथ वक्त गुजरता रहा, और फिर एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में सो चुका था, अचानक दरवाजा जोर से किसी ने खटखटाया। बाहर से एक आवाज आई, बहन क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। अभी हम बेसहारा हैं, अभी हमें रुकने के लिए ठिकाना चाहिए। उस औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान इलाके में इतने सन्नाटे में रात के टाइम इस वक्त में मदद मांग रहा है। वो जरूर मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। बाहर दो अजनबी लोग खड़े थे। उनकी हालत निहायत ही खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर से आ रहे हैं और उनके पैदल सफर की थकन ने उनके जिस्म चेहरे से रंग निचोड़ लिया है। उनके जिस्म से मतलब रंग उड़ा हुआ था, यानी इतने थके हुए थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था। बेटी माँ के पास आई और उसने अपनी माँ को बताया, माँ, दो अजनबी आदमी गेट पर खड़े हैं और वह मदद के तलबगार हैं। वह दोनों मदद मांग रहे हैं। माँ ने उन्हें रुकने की इजाज़त न दी और कहा, बेटा, हमारे घर में कोई आदमी नहीं है और हम अजनबी मर्दों को अपने घर में कैसे पनाह दे सकते हैं? ऐसे आधी रात को मैं अपने घर में अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दूं? मजबूरन उन मर्दों को वापस लौटना पड़ा। वो दरवाजे के साथ ही बैठ गए निढाल होकर, और थकान से चूर थे तो उन्हें पता न चला और वो वहीं बैठे बैठे सोने लगे। उस बूढ़ी औरत ने देखा कि वो दोनों लोग उसके बेटे की उम्र के हैं और उसकी ममता जाग उठी। उसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखना। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर देना। ज्यादा बातचीत से गुरेज करना, उनसे ज्यादा बातचीत न करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, ये हमारी आजमाइश है। हमें खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा और फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था उससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया, खाना बनाया, खाना पानी दिया और उन दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम भी कर दिया। दोनों मुसाफिर कमरे में जाकर सो गए, जबकि बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखी हुई थी। सुबह की अजान हुई। दोनों मुसाफिर उठे, वजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। जाते हुए वो बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। यह सुनकर दोनों आदमी रुक गए और उनमें से एक ने नरमी से अम्मी से पूछा, अम्मा जी, आप बीमार लगती हैं, क्या हुआ आपको? कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, यह बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूँ। निगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल से तकरीबन 10 साल से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। मुझे इस बीमारी में जीते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज न करवा सकी। बेटा, मेरे कोई बेटा नहीं है, न भाई है, शौहर भी नहीं है। 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तकलीफ भरी आवाज से बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है,
सुना है कि उनके इलाज से कई लोग अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो चुके हैं। बहुत से लोग शिफा पा चुके हैं। मैंने भी उनका नाम सुना है। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। लेकिन बेटा, मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ, इतनी दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि न मेरे पास इतना पैसा है, न वहाँ जाने का कोई वसाइल है। यह सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा, जैसे वह कुछ जानते हों या किसी हकीकत से वाकिफ हों। खामोशी से औरत की बातें सुनते रहे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और एकदम मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा, मेरा ईमान है कि जिस रब ने बीमारी दी है वह इंशाअल्लाह शिफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश कर सकता है और जो मेरे बस में था मैं वह कर चुकी। अब जब उस रब्बे करीम के सुपुर्द है सब सब कुछ, उस रब्बे वो रब ही कर सकता है, वो सब कुछ जानता है। बल आखिर एक आदमी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अम्मा जी, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? बूढ़ी औरत ने हैरत से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में, धीमे लहजे में कहा, क्या मतलब बेटा? मैं तो कुछ समझी नहीं। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह दूसरे साहब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने ही उनको आपके लिए यहाँ भेजा है। हम दोनों एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमिश्क आए थे। घोड़ों पर सफर कर रहे थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो घोड़े अचानक डर गए और हमें शहर से बहुत दूर ले गए। फिर रास्ते में हम दोनों घोड़ों से गिर गए और सारी रात अंधेरे में भटकते रहे। बहुत सफर के बाद आपका घर करीब लगा और हम यहाँ आ गए। अल्लाह की मर्जी से हम आपके पास आ पहुँचे हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। अम्मा जी, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली। अम्मा जी के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। यह सब कुछ सुनना उनके लिए जैसे एक ख्वाब था। यह सब कुछ किसी मामूली इत्तेफाक का नतीजा नहीं, क्योंकि न मैं आपसे वाकिफ हूँ न आप हमसे, बल्कि यह सब रब की रहमत का इशारा है। लिहाजा दोनों मुसाफिरों ने नाश्ता कर लिया। फिर बूढ़ी औरत का चेकअप किया, उनका इलाज किया और फिर रुखसत होते वक्त उनमें से एक ने कहा, अम्मा जी, फिक्र न करें, आपका इलाज अब यहीं घर पर ही होगा। अपने बेटे को भेजूंगा, वो आपको दवा दे जाएगा। दवा भी वही लाएगा जो सिर्फ हमारे पास ही दस्तयाब है। यहाँ तक कि बूढ़ी औरत के इखराज का खर्च भी डॉक्टरों ने अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि बूढ़ी औरत के पास कुछ भी न था और उसकी बहुत खराब कंडीशन थी। कुछ वक्त गुजरा, फिर वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वह हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब उस नौजवान ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो दिल में कुछ महसूस किया। दर हकीकत हकीम ने उसे दवा देने के साथ बीवी के लिए लड़की देखने के इरादे से भेजा था, क्योंकि हकीम ने उसी रात को लड़की की खिदमत और मेज़बानी देखी तो दिल में ही बहू बनाने की नीयत की। उसने तभी दिल में बहू बनाने का इरादा कर लिया था। जब हकीम के बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी वह पसंद आ गई। हया, शर्म और गैरत का जमाना था। लड़का चुपचाप चला गया और बूढ़ी औरत को सिर्फ इतना इशारा दिया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, ताकि वह किसी और को हाँ न कर दे। बूढ़ी औरत से रिश्ता तय पाया और कुछ दिन बाद उस नेक सीरत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर मालदार हकीम के बेटे से हो गई। उसी हकीम से जिसका वह कई सालों से इंतजार कर रही थी। उसी हकीम के बेटे से फिर उस बूढ़ी औरत की बेटी की शादी हो गई। चंद ही दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी सेहतयाब हो गई। अब वह अपनी बेटी के साथ बगदाद में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वह हर रोज बेटी को यही नसीहत देती
यही नसीहत करती कि बेटा हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता भरोसा रखो। जो कुछ होता है वह अल्लाह के हुक्म से ही होता है, उसके सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी भी परेशानी से गुजरो तो हमेशा अल्लाह से उम्मीद लगाओ। उम्मीद लगाओ दिल से। अल्लाह के दरबार में रो कर दुआ करो, वह सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक बेबस, बीमार, गरीब, बूढ़ी औरत थी, किसी काबिल न थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सेहत दी और खुशी अता की, क्योंकि वह इखलास देखता है। तो अल्लाह सबके दिल का जज्बा देखता है, उनका इखलास देखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक मेन सबक मिलता है, एक अहम सबक मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन दिल से सच्चे खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, उसके अलावा किसी को न पुकारा जाए। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही है जो हर मसले का बेहतरीन हल रखता है। अगर कभी कोई भी दुआ कबूल न हो तो यह मत समझो कि वह रद्द हो गई, बल्कि उसमें हमारा कोई ना कोई भला होगा, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि हमारी भलाई किस में है। अल्लाह हमारी बेहतरी के हिसाब से ही हमारा भला करता है, हमें कुछ नहीं पता। तो अल्लाह उस दुआ को उस बेहतर वक्त और बेहतर टाइम का इंतज़ार करता है, उसके हिसाब से जो बेहतर सूरत बनती है, जो बेहतर वक्त होता है, तब वो हमें देता है। और अल्लाह जब हमें कोई चीज़ देता है तो हमें पता नहीं चलता और हमें ऐसे टाइम पे दे देता है जब हम सोच भी नहीं रहे होते। तो अल्लाह हमारे लिए एक बेमिसाल चीज़ है जिसे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। हमारा यकीन अल्लाह पर ऐसा पुख्ता होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगना है। अब आप देखें कि उस बूढ़ी औरत को अल्लाह पर कितना यकीन था, है ना। वो किसी से उम्मीद नहीं करती थी, उसको सिर्फ अल्लाह पर ही यकीन था कि हाँ, मेरा अल्लाह चाहेगा तो हकीम को यहाँ भेज देगा या मुझे किसी तरह वहाँ पहुँचा देगा। वहाँ पहुँचने का नताइज उसके पास नहीं थे, तो वो हमेशा यही कहती थी कि मेरा अल्लाह ही मेरा मालिक है और अल्लाह ही के हाथ में है सब कुछ। तो आप देखो कि अल्लाह ने उसकी दुआ किस तरह से कबूल करी, मतलब पता भी न चला और अचानक से वो हकीम एक अनजान अजनबी आदमी की सूरत में उनके यहाँ पहुँच गए और उस बूढ़ी औरत का इलाज हो गया। तो आप देखें, यह है यकीन का सफ़र, यानी उस बूढ़ी औरत का यकीन इतना पक्का था कि उसका यकीन रायगा नहीं गया, उसका यकीन बेकार नहीं गया। तो हमें भी अल्लाह पर एक ऐसा यकीन बनाना चाहिए, एक ऐसा यकीन रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमारा रब हमारे साथ है और वो जो करेगा हमारे हक में हमारे लिए बेहतर करेगा। हमारे अल्लाह से बेहतर, हमारे परवरदिगार से बेहतर हमारे हक में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें तलब अल्लाह से ही हासिल करनी है। हमें लेकिन पुरखुलूस दिल के साथ, हमें सच्चे दिल के साथ अल्लाह से मदद मांगनी है। तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह किसी ऐसी सूरत में हमारी मदद कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और अचानक से हमें मदद आ जाती है। तो ये अल्लाह की मदद होती है। हमारी सच्चे यकीन के साथ हमें अपना यकीन अल्लाह पर बनाए रखना है इंशाअल्लाह। और यह स्टोरी, यह कहानी बच्चों के लिए भी एक सुनहरी सबक या सबक आमूज कहानी है। चाहे बेटा हो या बेटी, अगर वालिदैन की खिदमत दिल से की जाए तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में ऐसे इनाम देता है जो महज काबिलियत से हासिल नहीं होते। चाहे आप कितनी ही डिग्री उठा लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ
والدین کی خدمت سے والدین کی خدمت سے انسان کو ملتی ہیں۔ والدین کی خدمت رب کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس کے بدلے عزت مرتبہ سکون اور کامیابی سب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور پلیز کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک بات اور کہوں گی، اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔